ठीक है, like there is assessing future personnel need. मैंने बताया का future needs for human resources. All right, and afterwards, second is what foundation for other HRM functions. In order to do human resource management, like their organization, controlling, leadership, motivation. तो वो सब चीजें करने से पहले what you have to do is you have to plan. You have to make a plan. So human resource planning gives a foundation for all those HR functions. Next is coping with change. अच्छा मैं अनम्यूट करके बोल सकते हैं यस if there is anyone listening. हाँ जी हाँ बाकी कोई नहीं सुन रहा चलो आगे तनिष्का राय ओके शी इज आल्सो लिसनिंग ग्रेट बाकियों को क्या हो गया भाई ज्वाइन करके भाग गए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कोपिंग विद चेंज इसके बारे में मैंने बताया था देर if there is any change in the environment like पेस्टल के बारे में last class में बताया था there is political environmental technological social and economical and legal environment so all these 5-6 environments they all are um, they all are basically environment business and they affect a business a lot and in order to cope with those environmental changes what you have to do you have to make a plan so human resource planning helps you in that manner and if you go on further next is investment perspective so इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इज इन दैट मैनर दैट आप जब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हो तो ह्यूमंस को हम एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं वी कॉल देम ह्यूमन एसेट्स so if we are investing anything if we are planning about them so it helps in investment purpose also because ultimately what we are going to do we are going to pay remuneration to those human resources and they are going to provide their expertise and their services to the organization. Let's move on further. Next is expansion and diversification plans. So this what we are basically saying is expansion जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि you are going to expand your business. आज यहाँ है इसकी ब्रांचेस नहीं खोलने you are going to expand it into diversify your area. जैसे कि आप जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे थे now you are going to make health products as well. ठीक है ना so this is expansion and diversification. जब जब आप एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हो इन ऑर्डर टू मेक दैट प्लान एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान सक्सेसफुल व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर दोस एक्सपैंड कर रहे हो अगर एक नई यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हो यू नीड मोर ह्यूमन रिसोर्सेज if you are going to diversify if you are going to launch a new brand new product what you need is more human resources. All right. So human resource planning helps in expansion and diversification plans. Human resources properly. If you are going to provide them training and development opportunities properly, what will happen? They are not going to leave your organization. They are going to remain in your organization. So what do we call it? Employee turnover. Employee turnover is a situation where employees leave your organization because they were not satisfied with the working or the environment or anything. It can be anything. So in order to reduce the labor turnover or employee turnover, what you have to do, you have to make HR planning. Next is conformity with government guidelines. कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए भी you have to make human resource planning. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी. अब देखिए ऊपर इसके जस्ट ऊपर जो लिखा है एक्सपेंशन वाला इन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट दी if we are going to expand our business in our home country only but if we are going to expand our company in some other country जैसे इंडिया के बाहर जाके अगर मैं कहीं एक्सपेंड कर दूं मॉरिशियस है there is
सिंगापुर इज देयर, ठीक है। इन सब में अगर मैं अपनी ब्रांच नई खोलूं, एक नई एमएनसी एस्टैब्लिश करूं, व्हाट विल इट बी कॉल्ड? इट विल बी इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। So in order to follow those strategies, what you need is you need more human resources. और जहाँ पर भी you need more human resources, you need human resource planning. All right, just a moment. Okay, so last point is having highly talented manpower inventory. So human resource planning helps in maintaining those who are highly talented, and helps in maintaining those employees. Retention जिसको बोलते हैं. So those employees will not going to leave your organization. That is the main objective. So let it be. कहीं हमने बात कर ली थी कि why we are doing human resource planning. Then steps के बारे में हमने कल क्लास में बात कर ही ली थी जब हम रिवीजन कर रहे थे of question bank. So these were all the topics that we talked about, that like determination of objectives of human resource planning, that why we need this human resource planning. After which we are going to do is we are going to prepare skill inventory. कहने का मतलब ये है कि okay, so you are going to make skill inventory, after which you are going to forecast the demand and supply of human resources. Demand का मतलब है कि the demand of human resources your organization needs, the organization human resources that your organization needs. So that is your demand, and supply is basically the supply of human resources in the market, or you can say in your surroundings. All right, so these are the things. इसके बाद आपका आ जाता है गैप एनालिसिस. अब क्या है ना, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, सेकंड की कितने, थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, तो उसके बाद में फिर आपका ना गैप पता चल जाता है आपको, क्योंकि कितने हैं कितने चाहिए, तो गैप का आपको आइडिया लग जाता है. डिमांड के थ्रू you get to know what is the gap, how many more human resources we need, how many human resources we need to क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेट करने की जरूरत है, रिजाइन, वी हैव टू जस्ट सेपरेट देम. ऑलराइट, जिसके बारे में हमने बात करी हुई थी लास्ट क्लास में. अ प्लान ऑफ रीडिप्लॉयमेंट एंड रिडंडेंसी. रीडिप्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था दैट यू आर गोइंग टू रीडिप्लॉय योर एम्प्लॉयज. रीडिप्लॉयमेंट का मतलब है कि एक एम्प्लॉय जो है वो वन इज इन दी सेल्स डिपार्टमेंट. ऑलराइट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसको वहीं पर डिप्लॉय किया जाए. तो रीडिप्लॉयमेंट भी यही सब होता है कि यू आर गोइंग टू स्विच एम्प्लॉयज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, shifting one person to another. Yes, Himanshi is right. So next is redundancy. Redundancy में were human resources. You are going to if there are excess human resources, just a moment. हाँ जी, let's continue further. So redundancy basically यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है, आपने एक्शन प्लान बना दिया. आफ्टर मेकिंग एक्शन प्लान, what you need to do is employment was related to the employees already in your organization. पर जो बाहर से आपको लेने हैं, जो बाहर सप्लाई है, उससे जो आपको employment plan. All right. So you're going to make the employment plan. After which, what you're going to do is training and development program. तो ये जो employment plan है, इसमें basically हमारा training and development what you're going to do, you're going to formulate the plans, and afterwards what you're going to do is implementation of those training and development programs. All right, so these were the steps of human resource planning. नाक मत कटवाना मेरी अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया पेपर में तो.
ठीक है ना, अच्छे से कर लेना। चलिए आता है तो क्या था, आता है तो जर्नलिंग की डेफिनेशन। हाँ, क्वेश्चन में मैंने ये पूछा वना जी, बेसिकली आई हैव आस्क्ड दिस थिंग कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और उसके स्टेप्स डिस्कस करो। तो हाँ, आपको यही चीजें डिस्कस करो इस क्वेश्चन में। ये जो टेक्निक्स है सप्लाई की, दिस इज बेसिक है, जिसके बारे में मैंने ज्यादा बात के लिए ये वाला रहने देती क्योंकि क्वेश्चन बैंक, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्या 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 दिक्कत हो गई मैम? फंक्शंस ऑफ HRM। तो मैंने फर्स्ट, इफ यू रिमेम्बर, हाँ जी, मैंने दिया था फर्स्ट यूनिट, अब देखिए उसमें फंक्शंस दिए होंगे HRM। सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमें पता ही है कि देखो दो तरीके के मतलब हमारे पैटर्न्स होते हैं, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। माइक्रो में ज्यादा स्पेस की बात करेंगे और we'll talk about job enlargement के example. Yes, I'm this in this slide, take this further. तो इन सब के बारे में पता है कि माइक्रो में विच इज कनेक्टेड टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैक्रो की बात कर देता तो थोड़ा लेवल पे आप बात कर सकते हो ह्यूमन रिसोर्सेज। चलिए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी हमने बात कर ली थी क्लास में, इसके बारे में भी मैंने लिखा। आई थिंक मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है, सो पर गैस करेंगे। देन हमारा है, ये मैंने दे रखा है एमसीक्यूज वगैरह में भी और वैसे भी है। कल भी बच्चे क्लास में प्रॉब्लम पूछ रहे थे, सो लेट्स सी, मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में और बता देती हूँ, ठीक है। जॉब एनालिसिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जॉब को जो करना है, किस एनवायरनमेंट में करना है, क्यों कर रहे हैं हम ये, क्या पर्पस है उस जॉब को करने का, एंड हु इज गोइंग टू परफॉर्म दैट जॉब, what are the qualifications that required in order to do that job, so that is job analysis. उसके अंदर हमारे दो एरियाज आ जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। प्रॉब्लम्स पर बात करें कि तो देखो, सबसे पहली बात तो प्लान है। प्लान का मतलब तो सिंपली यही है ना कि यू आर जस्ट प्लानिंग, इट इज नॉट सर्टेन, uncertainty is there, right? Some environmental factors are, if they are going to change, what will happen, आपका प्लानिंग जो है ना वो तरीके से रह जाती है, इट जस्ट बिकम्स इररिलेवेंट, राइट। चलिए, सो फर्स्ट पॉइंट इज देयर आइडेंटिटी क्राइसिस थी कि there are managers and human resource specialists, they have identity crisis related to that. What will happen, that it will become a very big problem for human resource of supporting the it is not supporting the plan. What happens is planning के लिए एक बहुत बड़ा, there is a barrier that we cannot plan further because top management so very necessary in order to formulate a plan. Alright, let's move on further to insufficient information. कहने का मतलब ये है कि when we are planning, we need full data related to past experiences. But sometimes what happens is we don't have proper data related to the human resources, and that becomes a very big problem in the HR planning. Anyways, let's move on further. Insufficient initial efforts. कहने का मतलब ये है, आपने प्लानिंग तो बना दी, पर जो प्लानिंग को आप फॉर्मुलेट करने लगते हो ना शुरू शुरू में, इट इज इट ग्रोज स्लोली एंड ग्रेजुअली, ज्यादा करके ही people adapt that plan, all right, in the organization. Next is resistance from employees. अब देखिए, अगर टॉप मैनेजमेंट रेजिस्ट कर सकता है तो एम्प्लॉयज भी रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब ये है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज दोनों की ही रजामंदी होनी चाहिए. दे नीड टू अग्री अपॉन द प्लान. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन विद अदर मैनेजरियल फंक्शंस. कहने का मतलब ये है कि बाकी के जो मैनेजरियल फंक्शन, management related to finance, related to marketing, related to sales, related to or anything, तो उससे coordinated होनी चाहिए हमारी human resource planning. Alright, like we have made a decision, a managerial decision related to production. We have said that we are going to increase our production. अब in order to increase the production, what we need is अब more human resources के लिए what you need is human resource planning. So these are the things. Next is expensive and time consuming. कहने का मतलब ये है in order to plan you have to look upon all the factors, and when you're looking upon all the factors it becomes very time consuming process and expensive as well. All right. Last point is uncertainty. Again आपने जो आज बोला है, आज जो प्रण लिया है कि that I am going to do this thing in future, जरूरी नहीं है that particular thing is going to happen exactly like that. All right. So a plan is always a plan. It is not certain. अरे क्या होता है? चलिए अब बात कर लेते जॉब एनालिसिस की. हाँ जी, काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्टडी फॉर जॉब. You are going to analyze in detail. Okay, that is job analysis. Further, it is a process of collecting information about a job. एक जॉब की जितनी भी information है, you can do job analysis. उसके फिर मैंने वही दो तरीके बताए थे आपको, job description and specification. Description में what you are doing is you are describing the job, that what is the job, how we have to perform the job, and why we are performing this job. And then there is specification. चलिए सेकंड लाइन में देखिए क्या लिखा है, दैट इज द जॉब, द नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू कैरी आउट द जॉब इफेक्टिवली. अब देखिए जो जॉब है वो तो इट इज रिलेटेड टू जॉब डिस्क्रिप्शन, बट नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो दे विल कम अंडर व्हाट, दे विल कम अंडर जॉब स्पेसिफिकेशन. ऑलराइट, किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? ये जो हैंड रेज करके बैठे ये चल रही हमारी कोई है अभी या तक सो 4 गया? क्लासेस हो गई है. अब एक लास्ट होगी 5:30. हाँ जी यार, मेरे को ना इसलिए ऑनलाइन था पसंद. सबसे बड़ा थर्ड पॉइंट इज possess job related knowledge useful to carry out the job easily. Job holder is who? Is the employee. मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय है उसको पता होना चाहिए कि जॉब में वो करने क्या वाला है. जॉब रिलेटेड सारे, यार ये VEXED गेमिंग कौन है ये? एनीबडी नोस? हाँ जी, अलग ही आईडी से ज्वाइन कर रहे होते हैं यार. अच्छा, इट इज वार्निंग है ये सबके लिए. अगर आप लोग अपने DSPSR वाली आईडी से ज्वाइन नहीं कर रहे, किसी और आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड ऐसा कर रहा है, तो जस्ट इन्फॉर्म देम कि भाई अपनी वाली आईडी से करो. अगर पॉसिबल नहीं है तो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट बिफोर द क्लास, ताकि मेरे को पता तो हो कि कौन है. आप देखो गेमिंग करके नाम है, मैं क्या पता मेरे को कौन है, कौन एंटर हो रहा है क्लास में. सो आई कैन नॉट अलाउ एनीबॉडी ना कि एंटर इनटू द क्लास. सो यू हैव टू इन्फॉर्म अर्लियर बिफोर द क्लास. राइट. चलिए, जॉब एनालिसिस डन. Uses or benefits में अगर हम बात करें तो why job analysis is done? In order to help the planning, recruitment and selection, placement, induction, training and development. जॉब को evaluate करना है उसके लिए. फोर्थ में हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ना है जो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी जॉब एनालिसिस हेल्प करता है. एम्प्लॉय की काउंसलिंग करनी है उसमें हेल्प करता है. जॉब डिजाइन करने में हेल्प करता है. ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में भी जॉब एनालिसिस ही बताता है. चलिए अब प्रोसेस की अगर हम बात करें जॉब एनालिसिस का, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस पहले करना पड़ेगा. क्योंकि जॉब के बारे में अगर पता करना है तो उसकी रूट को पता करो कि उसकी रूट कहाँ से है. रूट उसकी है ऑर्गेनाइजेशन से. तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन. देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू इज ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द, it's not actually evolution, it is evaluation, Shruti. Don't worry.
in further slides, I think I have mentioned job evaluation. I'm going to take it for anyways. So फटाफट से इसके steps ले लेते हैं, खत्म करते हैं इसको. वैसे भी आधा घंटा है क्लास में, don't worry. So after obtaining the information, what we are going to do is we are going to take the selective representatives of the job who can provide the content related to that job, that what should be done in this particular job and how it should be done and who's going to do these kind of jobs. Responsibility of collecting, फिर उसके बाद में उस information को collect करना, and then you are going to develop the job description and job specification. These are the methods of data collection. मैंने इसके बारे में आपको बताया था. There is questionnaire, there is written narratives, there is observation, log reports and interviews. जिनके बारे में job analysis में these are the things. Job description and specification की description में these things are given कि क्या काम है, कहाँ हो रहा है. देखो लोकेशन की भी बात करें, जॉब की समरी कि ये सारी चीजें करनी है. रिपोर्टिंग टू, किसको रिपोर्ट करोगे, हु इज योर सुपरवाइजर, और आप पीयर्स कौन होंगे, और कंडीशंस क्या होंगी, जॉब ड्यूटीज, मशीन्स टू बी यूज्ड एंड हजार्ड्स, एवरीथिंग. स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन रिलेटेड सारी चीजें जो है स्पेसिफिकेशन पे आ. डिस्क्रिप्शन में अब मेरे को नहीं लगता मुझे लेने की जरूरत है, आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा कि व्हाट बी सिंपल है, जिसका काम उसको पता होना चाहिए कि काम करना क्या है. तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना एम्प्लॉय को दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन भी और स्पेसिफिकेशन भी. आप जैसे सम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अगर देखो तो उसमें सारी चीजें दे रहे होते हैं. अब आपको ये चीजें इसीलिए प्रोवाइड करी जाती है ताकि you can make up your mind that whether you want to do your internship or job or not. All right. Job specification again कि you know who is going to perform the job, what level of experience is required, what kind of qualified, all these things. Purpose भी इसका भी सेम है, वही एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि what are the skills that are required. Apart from that, organization should also know what are the specifications of this job. चलिए what we are going to do is we are going to enlarge the area that's given to that particular technique wherein there is an increase in the number of tasks. जो task है you have increased it. That is job enlargement. You are going to enlarge the job. Alright. You are going to enlarge the area of that job. Next, in other words, it means increasing the scope of one's duties. कि आपकी duties अगर सिर्फ एक area से related थी, what you are going to do, आपको आपका जो area है वो vast करके देगा. The increase in scope is quantitative in nature and not qualitative, and at the same time कहने का मतलब ये है कि quality, आप काम जो कर रहे थे ना, काम तो वही है, बट काम का जो भार है आपके ऊपर वो बढ़ा दिया गया है, क्वांटिटी बढ़ा दी गई है. मतलब यू नो अदर वर्क रिलेटेड आ गया. जैसे कि आप फाइनेंस का काम कर रहे थे बट आपको प्रोडक्शन रिलेटेड काम भी दे दिया. नहीं, आपको काम फाइनेंस का ही दिया है बट उसमें ही मतलब टास्क बढ़ा दिए हैं आपने. होप यू ऑल गॉट इट. नेक्स्ट इज इट इज हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग मेथड. हॉरिजॉन्टल मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था. जैसे मैथ्स में था ना आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज हॉरिजॉन्टल, एंड द वाई एक्सिस इज वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है इन द सेम पोजीशन, योर पोजीशन इज द सेम, only thing that is happening is that your area, your job area is going to get enlarged, it is going to get increased. All right, that aims at increase in the workforce flexibility. Flexibility का मतलब ये कि आपको काम को लेकर फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है. आपको एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क हैंडल करना सिखाया जा रहा है. ऑलराइट, सो मे क्रीप अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देखिए, मोनोटनी का मतलब बेसिकली होता है कि एम्प्लॉइज यूजुअली व्हाट हैपेंस, दे फील दैट एक होता है ना, जस्ट अ मिनट.
let's move on further. So what we were talking about, monotony. Monotony में क्या होता है कि एम्प्लॉयज बेसिकली क्या होता है, एक बार बोर हो जाते हैं और वो जो काम की उनकी एफिशिएंसी होती है ना, वो करेंगे। तो एम्प्लॉयज को एफिशिएंट रखने के लिए एंड टू रिड्यूस द मोनोटनी, उनका जो एक लेजी नेचर होता है उसको खत्म करने के लिए व्हाट वी डू इज मैनेजमेंट। देखिए, इट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल लोडिंग, इन दैट द responsibilities increase at the same level and not vertically. देखो, सिंपल सी बात है एनलार्जमेंट पे, इफ यू आर गोइंग फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब सिंपल सी बात है कि बस लेडीज इंक्रीज हो रही है, वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, बट ये ठीक, वर्टिकल नहीं है कि मतलब कुछ रिड्यूस या फिर इंक्रीज नहीं हुआ है, इट इज द सेम, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही कि रिड्यूसेस मोनोटनी। मोनोटनी को देखो, इन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, बोर्डम। देखिए, howsoever interesting the job, may appear in the beginning, sooner or later people complain of boredom and monotony. कहने का मतलब ये है कि एक जॉब इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर इंसान को उससे बोरियत नहीं लगती, if you are conscious bored of that particular thing, तो उस बोर्डम को खत्म करने के लिए, मोनोटनी को खत्म करने के लिए व्हाट वी डू इज जॉब एनलार्जमेंट। से बात कर ली कि वर्क फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वी आर मेकिंग आवर एम्प्लॉयज मोर वर्सेटाइल सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर इंडिविजुअल टास्क efficiently and effectively. Next, third benefit is no skills training required. Job enlargement because you are going to, आपका एरिया जो है इट इज, you don't need अब जॉब एनरिचमेंट पे बात कर लेते हैं। विजुअलाइज द चैलेंजेस। देखिए, इसमें क्या लिखा है, इट्स इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग फॉर द एम्प्लॉयज। तो देखिए, आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए what you are going to do is you are going to increase the area just like job enlargement. चैलेंजिंग में क्या होगा कि कुछ ऐसे टास्क दे दिए जो he was not performing earlier, उसके लिए चलिए नेक्स्ट, it can either be in the form of upgradation of responsibilities, मतलब आपकी जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको अपग्रेड कर दिया गया। इट इज sort of enrichment is sort of because your responsibilities are not the same. Your responsibility same, your responsibility in the area of when is getting vast and getting increased. So benefit क्या है job enrichment के? These are basically decreased level of absenteeism among the employees. If you are getting enriched, you are getting more for working more. The rate at which employees are getting absent gets reduced. All right. Second is reduce employee turnover. So basically, if you are, time to time doing the job enrichment thing, what happens is employees feel more motivated and satisfied, and they don't leave their organizations. So employee turnover जो है वो हमारा खत्म हो जाता है, या खत्म भी नहीं, मतलब रिड्यूस हो जाता है एक तरह से, खत्म तो कभी नहीं होता। Anyways, third is increase in job satisfaction. Satisfaction, वही कहना चाह रहे हैं कि if someone is getting some responsibilities more than the earlier stage, पहले उसको कुछ काम दिया गया था कि जो कि एक लेवल पे था, but now he is getting more and more responsibilities, he will feel motivated that my opinion, my viewpoint is being considered as important. So that is how job enrichment helps. So job enlargement और job enrichment ये था। अब इसका हम difference, so the difference between job enrichment and enlargement is essentially of quantity and quality. कहने का मतलब ये, scope देखिए, means increasing the scope of job quantity. आप नंबर्स में इंक्रीज करो, आपने वर्कलोड दिया है, तो जॉब एनलार्जमेंट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी। पर एनरिचमेंट में व्हाट इज हैपनिंग, जो क्वालिटी है जॉब की वो इंक्रीज हो रही
हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द जो काम दिया गया जा रहा है करने के लिए, ठीक है ना। सो दैट इज मतलब कि आपको एक नेक्स्ट लेवल काम दिया जा रहा है, काइंड ऑफ वर्टिकल, ठीक है। तो दैट इज yeah, more fulfilled. Anyways, let's move on to second point. Through job enrichment, an employee finds satisfaction in his job enrichment के through उसको satisfaction मिलती है, and through enlargement, what का मतलब ये जितना ज़्यादा काम मिलता है कि employee he feels like he has some kind of responsibility that he has to follow. Or enrichment में he is getting satisfied that my viewpoint is being considered while making any kind of decisions. Next is job enrichment entails the functions of planning and organizing, and enlargement involves execution of the same. कहने का मतलब ये enrichment में what you are doing, आपने बस आपकी जो job थी vertically you have improved the quality of that particular thing. तो इसमें आपके बेसिकली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जैसे जो मेजर फंक्शंस है आपके बिजनेस के, these are getting involved. Enlargement में what we are doing is we are executing those plans and we are organizing in a better manner. So both complement each other in the job enrichment empowers in that job enrichment empowers the enlargement. कहने का मतलब ये है कि जो enrichment है तो उसमें क्या हुआ, enlargement both are complementary, both are completing each other. And the reverse is not true. अब देखिए ऊपर ही हमने बात करी कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग किस पर है जॉब एनरिचमेंट में, एंड वो एग्जीक्यूट कर रहा है जॉब एनलार्जमेंट अपॉन द जॉब एनलार्जमेंट, बिकॉज जॉब एनलार्जमेंट इज गोइंग टू execute that plan and organizing things. So it's job depends upon the job enlargement. और रिवर्स इसमें ट्रू नहीं है क्योंकि जॉब एनलार्जमेंट की जो सक्सेस है वो एनरिचमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। वर्टिकल में वर्टिकल है और जॉब एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल है। सो जॉब एनरिचमेंट मींस अ वर्टिकल एक्सपेंशन इन ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो उसका जो एरिया ऑफ कंट्रोल है इट इज आल्सो गेटिंग वास्ट, whereas in job enlargement expansion is horizontal in nature, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल है, बस क्या किया है, वर्कलोड बढ़ा दिया है, दैट्स इट। So that was all about job enrichment and enlargement. किसी को कोई डाउट है? श्रुति आनंद, जिनको क्वेश्चन था clear, Himanshi was clear. Okay, so Shruti is asking for the examples of job enlargement. Enlargement में देखो मैंने क्या बताया कि वर्कलोड बढ़ा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूँ एक टीचिंग इंस्टीट्यूट की, if I'm already teaching 3 classes, what happens is मेरे को चौथी एक और क्लास दे दी, ये क्या है, this is enlargement. My area of job is श्रुति, हाँ जी, जिसका क्वेश्चन था श्रुति, इज इट क्लियर? सुना नहीं लगता इसमें, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट में भी मैं थोड़ा बहुत देर तक क्वेश्चन बैंक में। सो रिक्रूटमेंट के बारे में आपको पता है कि इट इज अ प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू अप्रोच, यू आर गोइंग टू मेक कैंडिडेट्स approach your organization and join your organization. That is it. You are going to make them apply for the, you have to identify the different सोर्सेस और लेबर सप्लाई, मतलब कि कहाँ कहाँ पर आपको जो है रिक्रूटमेंट आप कर सकते हो, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरनल। इट वाज क्लियर टू यू और नॉट? जी श्रुति,
Well, ma'am, actually I wanted examples of job enlargement and enrichment. Okay, actually I have already given it. What happens is job enlargement में आप horizontally work कर रहे हो, ठीक है? आपका जो area था, it has got vast in the horizontal paradigm. What happens is, जैसे मैंने आपको teaching institute की बात करी, ठीक है? Like I am teaching in 4 classes and I have given one another class for teaching. तो क्या हो रहा है कि मेरा जो area है, मेरा जो job है, it is getting enlarged. I have got some extra work. मतलब वर्कलोड जो है ना, इट इज गेटिंग इंक्रीज, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट एट द सेम लेवल ऑफ वर्क. आपका जो जॉब है, इट इज गेटिंग इंक्रीज, तो दैट इज जॉब एनलार्जमेंट. एनरिचमेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें व्हाट हैपेंस दैट if I am teaching, what happens is मुझे teaching के अलावा if extra works are given, like I have told you I am in placement cell, तो what happens is कि मेरे को teaching के अलावा extra कुछ करने को दिया गया है. So what will happen? I will feel more motivated and satisfied. So these were मैंने यही अपने उस पे लगा के example देते, तो I think it's clear to you. Yes, ma'am. Okay. So now we were at the process of recruitment. So basically, firstly आपको यही देखना है कि sources क्या क्या है जहाँ से आपको laborers मिल सकते हैं, जहाँ से आपको employees मिल सकते हैं. So internal and external sources are there, जिसके बारे में बार-बार बात कर चुकी हूँ, test भी ले चुकी हूँ. I think it is very very clear to you all that what are the sources of recruitment. After defining the sources, what we are going to do, that assess their validity. It means that we are going to validate whether the candidates that we are going to acquire from these sources, are these valid. मतलब is there any जैसे आप कैंपस प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है? अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते हो, कॉलेज में जाते हो प्लेसमेंट के लिए, तो एक कंपनी जो है वो सबसे पहले ये देखेगी कि क्या ये इस ऑर्गेनाइजेशन को यूजीसी से या फिर एक पर्टिकुलर established institution जैसे आईपी है, आईपी से कोई एफिलिएशन मिला हुआ है, या फिर देयर इज सम काइंड ऑफ वैलिडिटी. क्योंकि जैसे आपका कॉलेज है, इट इज एफिलिएटेड विद आईपी, ठीक है? तो उसकी वैलिडिटी आईपी से है, ठीक है? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू वैलिडेट द सोर्स जहां से आप जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. थर्ड इज चूज द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेस. कहने का मतलब ये जो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल हो. सुटेबल का मतलब किसी भी सेंस में सुटेबल हो सकता है, जहाँ पर आपको पैसा कम खर्चना पड़ रहा हो, जहाँ पे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो रहा हो, जहाँ पे आपको द काइंड ऑफ एम्प्लॉयज दैट यू रिक्वायर वही आपको वहां से मिल जा रहे हैं. तो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट अ मिनट. So what you are going to do is you are going to choose that source which is more suitable to your organization, ठीक है? अब जैसे आपके पास जो है फंड्स के क्राइसिस है, पैसे ज्यादा नहीं है, तो आप ऐसा कोई सोर्स लोगे ना जहाँ पर आपको ज्यादा पैसे ना खर्चने पड़े और आपको जो है मतलब फटाफट से रिक्रूटमेंट का काम आपका फिनिश हो जाए, इस तरीके. लास्ट स्टेप इसमें रिक्रूटमेंट में आपका जाता है कि इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वेकेंट जॉब्स. कहने का मतलब ये है कि जो वेकेंट जॉब्स है उसके लिए आप जो है एप्लीकेशंस जो है इनवाइट करते हैं. अच्छा, दोज हु आर लीविंग, आई हैव टू टेल वन थिंग. आप लोगों को अटेंडेंस जो है मतलब मैं आई विल शेयर द गूगल फॉर्म, यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस देयर. चलिए, सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जिनके ऊपर हम बात कर चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट फर्दर, वरना फिर लोग बोलेंगे रिपीट हो रहा है. चलिए मेरिट्स पे बात करें. मेरिट्स इंटरनल सोर्स के क्या है? सबसे पहले तो एम्प्लॉयज विल फील मोटिवेटेड, क्योंकि इंटरनल में देयर इज वन थिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर. कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड दैट अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो आई विल फील प्रमोट, आई विल गेट प्रमोशन. ऑलराइट, मेरिट इज देयर. डीमेरिट ये हो जाता है कि आपके पास नए फ्रेश माइंड्स नहीं आते बेसिकली, ठीक है? सो दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स की अगर हम मेरिट्स की बात करें तो एक्सटर्नल में पहले तो वाइडर चॉइस. आपके पास वाइडर चॉइस है, क्वालिफाइड पर्सनल है, फ्रेश टैलेंट है एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब ये है इंटरनल और एक्सटर्नल वाले जो है ना, उनके बीच में क्या हो जाएगा कि यार बाहर वाला जैसे आया है, नाउ कंपटीशन हैज रेज्ड, क्योंकि एक फ्रेश टैलेंट आया है जिसके पास और बेटर स्किल्स है हमसे, तो कंपटीशन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है.
तो वो मेरिट हो जाता है हमारा, क्योंकि जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। अब देखिए डीमेरिट क्या है इसका, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब देखिए एक तरफ तो मेरिट ये था कि भाई मतलब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा, बिकॉज वो बोलेगा कि आई वुड हैव बीन प्रमोटेड टू दिस पोजीशन जहाँ पे आपने हायरिंग करी बाहर से। तो भाई दे विल रेजिस्ट ना कि भैया ऐसा क्यों किया, व्हाई यू डिड दिस। लेट्स मूव ऑन फर्दर। सेकंड इज लेंदी प्रोसेस। लेंदी प्रोसेस है क्योंकि आप बाहर से जब करते हैं आपको प्रॉपर जैसे प्लेसमेंट वगैरह होती है कॉलेज वगैरह में होती है, ठीक है। आप अगर किसी एक्सचेंज वगैरह में, जैसे मैंने बताया था आपको एसएससी वगैरह यूपीएससी एकदम से तो नहीं हो जाती, सालों लगते हैं इनके एग्जाम्स वगैरह में, इंटरव्यूज में एंड एवरीथिंग। सो व्हाट हैपेंस इज कि इट बिकम्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। लेंदी के साथ साथ इट बिकम्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। अब आप देखो अगर आप ऐसे यूपीएससी वगैरह इन सबके जब फॉर्म्स के फीस पेमेंट करो तो हर कोई उस फॉर्म की फीस पेमेंट कर रहा है, राइट। तो what happens is in order to reduce that cost, they what they do is they take some kind of charge or fees, ठीक है। तो it becomes a very foremost demerit। नेक्स्ट इज अनसर्टेन रिस्पॉन्सेज। अब अनसर्टेन का मतलब ये है कि अब जैसे आपने एप्लीकेशन निकाल ली 15 जॉब्स के लिए, 15 की जगह 15 चाहिए थी पर मान लो 1000-2000 की एप्लीकेशन आ गई। अब सिर्फ 15 के लिए 1000-2000 में से छांटना इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। फिर अनसर्टेन रिस्पॉन्स का एग्जांपल आप इसमें रिवर्स भी देख सकते हो कि आपने 15 के लिए निकाली थी पर आपके पास एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ 10 की है, ठीक है। तो अनसर्टेन रिस्पॉन्सेज भी एक्सटर्नल में हो सकते हैं। चलिए रीसेंट ट्रेंड्स पे बात कर लेते हैं, इसके बारे में शायद मैंने शॉर्ट नोट में दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या है, ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट में देख लेते हैं। देखिए एडवांटेज क्या, मैं वैसे बता देती हूँ वैसे ई रिक्रूटमेंट, व्हाट इज ई रिक्रूटमेंट। इसमें यू आर गोइंग टू take the employees, take the candidates through electronic sources, ठीक है। that is e-recruitment। so the very first advantage of e-recruitment is low cost। आपको जाना नहीं पड़ रहा है। अब जैसे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसके थ्रू मतलब हुआ आपका इंटरव्यू, थ्रू टेलीफोनिक राउंड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये क्या है, आपको कॉस्ट बेसिकली इनकी रिड्यूस हो गई है उसके थ्रू। आजकल तो कॉल्स की मतलब रेट बेसिकली बहुत ही मतलब लो हो चुकी है। सो फ्री ऑलमोस्ट फ्री है कि इंफिनिटी टाइम्स का हो जाता है ना टाइम पीरियड, यू कैन कॉल फॉर इंफिनिटी। सो दैट इज लो कॉस्ट। देन ई रिक्रूटमेंट मींस इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। कहने का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू रिक्रूट ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जैसे कि आप अगर बात करो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, देयर इज naukri.com, इज देयर एक वो मैंने एक ऐप के बारे में बताया था, देयर इज इंडीड, देयर इज अपना ऐप एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, क्या होता है वो जहाँ पे सबकी प्रोफाइल बनती है एम्प्लॉइज की, क्या नाम है उसका, मैं नाम ही भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, एग्जांपल हम आगे देते रहेंगे, बट द थिंग इज ऑल दीज वेबसाइट्स ऑल दी ये जो है ई रिक्रूटमेंट में आपको हेल्प करती है। Apart from that, an organization makes their own website that is also a part of e-recruitment. All right. So it lowers the cost for recruitment. Second is wide geographical coverage। कहने का मतलब ये है इंटरनेट एक टाइम पे बहुत सारे लोग एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो है एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी कवरेज जो है ना बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। टाइम सेविंग हो जाता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है विद इन सेकेंड जो है जैसे व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट होती है, तो विद इन सेकेंड ऐसे सर्कुलेट हो जाती है, सेविंग द टाइम, ठीक है। फोर्थ इज राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ये तो आपके एचआरएम का मेन मोटो ही है कि वी नीड द राइट पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। देन देर इज मोर इजियर इसीलिए क्योंकि इंटरनेट पे करना इज वेरी इजी, सबको आज के डेट में यूज करना आता है, यू ऑल नो दैट। डिसएडवांटेज इसका ये हो जाता है लो एंड नो एक्सेस ऑफ इंटरनेट। लो का मतलब ये कि कुछ जगह पर जो है ना इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत ही स्लो होती है। आप लोगों को पता होगा कई जगह है यहाँ पर आज की डेट में इंडिया में आज भी जहाँ पे 2G तक का नेटवर्क भी नहीं आता है। कहाँ हम 5G की बात कर रहे हैं, 2G तक का भी नेटवर्क नहीं आता है। तो व्हाट हैपेंस इज दे कैन नॉट अप्लाई इन टाइम, तो इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज। तो वो तो लो एक्सेस लो वाला हो गया। नो वाले में है कि कहीं कहीं पर तो इंटरनेट ही नहीं है। लो को छोड़ो नो भी नहीं है, मतलब है ही नहीं, नो वाला केस भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज में ये कहना चाह रहे हैं कि देयर आर फ्यू पीपल हु डोंट इवन नो हाउ टू यूज इंटरनेट। बहुत से ऐसे हैं। अब
एजड लोगों की बात कर लो, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल देहाती है, फोन यूज करना नहीं आता, काफी इस तरीके के लोग होते हैं, राइट? So there is lack of knowledge, they don't know how to use the internet and all these facilities, so that becomes a disadvantage in e-recruitment. Third one is validating the resume. उसमें ये हो जाता है कि आप resume जो है ना उसको validate नहीं कर पाते हो, ये नहीं पता लगा पाते हो कि is it valid or not, क्योंकि आप सर्टिफिकेट्स कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है? उसके लिए तो आपको फिजिकली you have to contact the human resource physically. चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है आउटसोर्सिंग। सेकंड हमारा रिसेंट ट्रेंड है रिक्रूटमेंट में, दैट इज आउटसोर्सिंग। इससे कहने का मतलब ये है कि आप बाहर से यू आर गेटिंग एम्प्लॉयज, आप आउटसोर्स कर रहे हो। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज आपका ये हो जाता है, कंपनी को प्लान करने की, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, तो प्लानिंग का टाइम बच गया। सेकेंड इज वैल्यू क्रिएशन, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कहने का मतलब ये है कि आपके पास हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय जो है आप बाहर से आउटसोर्स कर सकते हो। इन दैट मैनर इट हेल्प्स, जब जैसे आपका काम हो गया फिर नए एम्प्लॉयज हायर कर लिए, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहती है। थर्ड इज टर्निंग द मैनेजमेंट फोकस टू स्ट्रेटेजिक लेवल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने स्ट्रेटेजिक एचआरएम के बारे में आपको बताया था, तो कहने का मतलब ये है कि आउटसोर्सिंग के थ्रू क्या हो रहा है ना कि आप बाकी के एचआरएम के एरियाज पे फोकस कर पा रहे हैं, आपको टाइम मिल पा रहा है। अदरवाइज अगर आप आउटसोर्सिंग ना करो, हाँ जी सीआर, इज इट द टाइम टू ज्वाइन द मीटिंग? यस शिवम यादव, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, मत करो रिस्पॉन्ड, तुम्हें देखती हूँ मैं, तुम क्या है यार, छोड़ो। एनीवेज, आई विल शेयर द लिंक, अटेंडेंस मार्क कर देना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कंपनी इज फ्री फ्रॉम सैलरी नेगोशिएशंस, वीडिंग एंड अनसुटेबल रिज्यूमे कैंडिडेट्स। कहने का मतलब ये है, जब आप नॉर्मल रिक्रूटमेंट कर रहे हो, व्हाट हैपेंस इज यू गेट रिज्यूमे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल एंड some are suitable and some are unsuitable, और फिर आप जो छटनी करने स्टार्ट करते हो, that becomes a very time consuming process. But through outsourcing what you are getting is you are getting highly qualified employees, और उसकी वजह से you don't need to go through all these things, और ना आपको सैलरी नेगोशिएट करने की जरूरत है, ऑल दिस थिंग, ये सब चीजें नहीं होती हैं। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट इज कंपनी कैन सेव अ लॉट ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड टाइम। इसके ऊपर मैं बार बार ये जो चारों टॉपिक्स थे, चारों पॉइंट्स थे, उसमें मैं बात कर चुकी हूँ, दैट आपका टाइम और रिसोर्सेज सबके सब सेव हो रहे हैं। एडवांटेजेस पे अगर हम बात करें, देयर आर फोर, सॉरी डिसएडवांटेजेस पे बात करें तो देयर आर फोर डिसएडवांटेजेस बेसिकली ऑफ आउटसोर्सिंग। व्हाट दीज आर? गिविंग अप कंट्रोल। हाउ यू आर गिविंग अप कंट्रोल? बेसिकली आप जब आउटसोर्स कर रहे हो, एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, बाहर के हैं, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टेल देम कि ऐसे ही करो, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही काम होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल देम। सेकेंड इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में क्या होता है कि यू डोंट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय, बिकॉज यू आर गोइंग टू आउटसोर्स। अब उनका जो एम्प्लॉयर है, यू हैव कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। एनीवेज, थर्ड वन इज लेस नॉलेज अबाउट द पीपल। कहने का मतलब ये है, व्हेन यू आर आउटसोर्सिंग यू नो द एम्प्लॉयर, पर जो एम्प्लॉय आपके उसमें आउटसोर्स होके आ रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट? फोर्थ इज डिपेंडेंसी। क्या होता है ना कि जब आप आउटसोर्स कर रहे हो तो यू बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन दी एम्प्लॉयज, दोज एम्प्लॉयज। अब कोचिंग और रेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था व्हाट इट इज। जब आप गोल्डन हैंडशेक, देयर इज अ टर्म गोल्डन हैंडशेक जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, इन विच व्हाट वी डू इज वी आर गोइंग टू अप्रोच the employee of a competitive firm, and we give a deal to that person to join our organization on certain terms and leave that particular organization. All right, that is poaching and raiding. तो इसका एडवांटेज सबसे पहले हो जाता है कि विन विन सिचुएशन, क्योंकि आपके पास एक हाईली टैलेंटेड और क्वालिफाइड एम्प्लॉय आ रहा है, तो पोचिंग एंड रेटिंग बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाती है बिकॉज यू हैव द हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है, योर ह्यूमन रिसोर्सेज वर एलोकेटेड समवेयर बट नाउ
now you can use them further in some other places. So that helps in reallocation. नेक्स्ट वन इज बेटर सेल्स एंड जनरेट रेवेन्यू जनरेशन. कहने का मतलब ये है, पोचिंग आप बेसिकली करोगे क्यों? एक एम्प्लॉय की एक्सपर्टीज आपको क्यों चाहिए? बेसिक मोटिव तो यही है ना कि आपको प्रॉफिट कमाना है, सेल्स चाहिए, ठीक है ना, धंधा करना है. तो धंधा करने के लिए लोग बुलाते हैं. डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अनएथिकल. आप एक एम्प्लॉय जो कि कॉम्पिटिटिव फर्म में था, उसको पैसे के थ्रू या फिर कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स देकर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुला रहे, इट इज वेरी अनएथिकल. देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब लालच देना अपने आप में बहुत बड़ी इट इज नॉट एट ऑल एथिकल थिंग. ठीक है. एनीवेज, सेकंड इज थिंक एंड पोच. थिंक एंड पोच में मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि विच एम्प्लॉय यू आर गोइंग टू पोच वो कम से कम. पारस जैन, व्हाट हैपेंड? हाँ जी, अटेंडेंस. कुछ नहीं होता तुम्हारा. So think and poach में you have to think before poaching, because what happens is if the employee is not interested, your reputation in the market becomes down कि आप जो है एक एक unethical तरीके से किसी को पोच करने की कोशिश कर रहे हो. थर्ड इज what damages to be paid. डैमेजेस का मतलब ये है कि आपकी जो एम्प्लॉय में मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, दे विल फील डिसहार्टेंड कि हमें प्रमोट कर देते इस पोजीशन पे, ये बाहर वाले को क्यों लिया है. तो दैट बिकम्स एक डैमेज क्रिएट हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके लिए आपको पे करना पड़ता है. सिलेक्शन पे आप देखो, बस हो गया इतना रिवीजन. सिलेक्शन